So hello, good morning students. Welcome to Success Station. I am Vikrant Anand and this is the next part of our chapter polynomials. Okay, so let's start with the today's class. So in today's class we are going to study the value of a polynomial and the zeros of the polynomial. And based upon these discussions we will going to solve some questions that you can see on the board I've written over here. Okay, understood? So first topic that is value of a polynomial. तो यहाँ पे देखिए मैंने एक पॉलिनोमियल लिख के रखा है दैट इज p ऑफ x is equal to 3x square minus 2x plus 1 and I have been told to find out p of 2. तो देखिए मुझे क्या फाइंड आउट करना है p of 2. तो यहाँ पे आप अगर देखोगे then x has been replaced with 2 means मुझे क्या करना है सिंपली I will replace x with 2. इस पॉलिनोमियल में जहां पे भी x लिखा हुआ है मैं क्या करूंगा उस x की जगह पे 2 को मैं लिख दूंगा और उसका वैल्यू मैं फाइंड आउट कर लूंगा. ओके सिंपल. सो आई विल राइट इट एज 3 इंटू 2 to the power 2 बिकॉज x का वैल्यू हमने 2 लिया है यहाँ पे माइनस 2 इंटू 2x था सो 2 इंटू 2 प्लस 1. ओके सो 2 स्क्वायर इज 4 एंड 4 इंटू 3 इज 12 एंड minus 2 into plus 2 that is minus 4 and plus 1. So 12 plus 1 is 13 and 13 minus 4 is what? It is 9. Okay. So what is 9? 9 is the value of the polynomial px at x equal to 2. Understood? Similarly हम लोग p of 3 भी find out कर सकते हैं. Here what we will do? We will replace x with 3. So 3 into 3 का square. Okay. Minus 2 into 3 plus 1. Clear? So 3 square is 9 and 9 into 3 is 27 and minus 2 into plus 3 is minus 6 plus 1. So 27 plus 1 is 28 and 28 minus 6 is what? It is 22. Clear? So what is 22? 22 is the value of the polynomial px at x equal to 3. Okay, understood? I have taken one more example here. F of x equal to x to the power 3 minus 6x square plus 11x minus 6 and I have been told to find out f of 2. Okay, तो find out करते हैं हम लोग f of 2. I will replace x with 2. So 2 to the power 3 minus 6 into 2 to the power 2 plus 11 into 2 minus 6. Okay, so 2 to the power 3 is what? It is 8. 2 to the power 2 is 4 and 4 into minus 6 that is minus 24. Plus 11 into 2 is 22 minus 6. So 22 plus it is 30 and it is minus 30. So 30 minus 30 is what? It is 0. So यहाँ पे देखिए मैंने जैसे ही x के जगह पे 2 को पुट किया इस पॉलिनोमियल में देन इस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है वो 0 आ गया. यानी यहाँ से हम एक पॉइंट क्या कंक्लूड करेंगे? 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल. यहाँ पे एक न्यू टर्म आ गया 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल. यहाँ पे मैंने x के जगह पे 2 को पुट किया देन इस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है वो 0 हो गया. देन व्हाट इज 2? द 2 इज द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल दैट इज f ऑफ x. क्लियर? सो व्हाट आई विल राइट दैट x इक्वल टू 2 इज अ 0 और आई कैन ऑल्सो से रूट. ओके, 0 एंड रूट बोथ आर द सेम टर्म्स. x इक्वल टू 2 is a 0 or the root of the polynomial f of x. Okay, understood? So if I want to define or if I want to write the definition that what is the 0 of a polynomial, then what I will write? 0 of a polynomial. Okay, what is 0 of a polynomial? What is 0 of a polynomial? So what I will write, the value of x, the value of x, the value of x for which, okay, for which the polynomial becomes 0. The value of x for which the polynomial becomes 0, or I can say the value of x for which the value of the polynomial becomes 0 is known as the 0 of the polynomial. इस एग्जांपल में मैंने x इक्वल टू 2 पुट किया देन इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ गया. देन x का वो कौन सा वैल्यू पुट करने से इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आया? x इक्वल टू 2. इट मीन्स x इक्वल टू 2 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल f of x. Okay, understood?
Okay, again, one more important point that I want to discuss with all of you, that a polynomial of degree n, a polynomial of degree n can have maximum n number of zeros. ओके, ना इस पॉइंट का मीनिंग समझिए. मान लेता हूं मैं यहां एक क्यूबिक पॉलिनोमियल कंसिडर कर रहा हूं. ओके, क्यूबिक पॉलिनोमियल लाइक x to the power 3 minus 6x square plus 7x minus 9. तो यहां पे देखिए वेरिएबल के मैक्सिमम पावर को देखिए, दैट इज 3. सो इट मीन्स द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3. ओके, अंडरस्टूड. सो इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो 3 है. सो इट मीन्स दिस गिवन पॉलिनोमियल कैन हैव मैक्सिमम 3 नंबर ऑफ जीरोस और दिस पॉलिनोमियल कैन हैव मैक्सिमम 3 नंबर ऑफ रूट्स. ओके, यही पॉइंट मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना था. ओके, अंडरस्टूड. ये पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को. आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं हम लोग. सो द फर्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर -2, +2 are the zeros of the polynomial x plus 2. ओके, हमें चेक करना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पॉलिनोमियल. मैं कंसिडर कर लेता हूं fx इज अ पॉलिनोमियल दैट इज x plus 2. सो मुझे चेक करना है दैट क्या -2 एंड +2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x plus 2. तो सिंपली मैं क्या करूंगा, x के जगह पे -2 को लिख दूंगा एंड सेकेंड केस में x की जगह पे मैं +2 को लिख दूंगा. तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, f of 2 ही फाइंड कर रहा हूँ ना. ओके, फर्स्ट -2, f of -2. ओके, f of -2 में फाइंड कर रहा हूँ. देन आई विल रिप्लेस x विथ -2. सो -2 + 2 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पे आप देखोगे मैंने x के जगह पे -2 को जब पुट किया, देन पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ गया. देन इट इंडिकेट्स व्हाट, इट इंडिकेट्स दैट -2 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल f of x. नाउ आई विल फाइंड f of 2, f of +2. ओके, देन आई विल रिप्लेस x विथ 2. सो 2 + 2 is 4. So that is not equal to 0. Then it indicates what? That x equal to 2 is not a zero of the polynomial x plus 2. So I will write it that x equal to 2 is a zero of the polynomial f of x, comma x equal to -2 is not a zero. Okay, is not a zero of the polynomial f of x. Understood? This is the solution of your question number 1. Okay, let's move towards the next question, that is question number 2. Check whether x equal to -1/√3 and x equal to 2/√3 are the zeros of the polynomial 3x square minus 1. Okay, मैं फिर से उस पॉलिनोमियल को कंसिडर कर लेता हूं. लेट p of x equal to 3x square minus 1. Okay, then I have to check x equal to -1/3. Then what I will find, p of -1/√3. Okay, then I will replace x with -1/√3. Okay, understood. Okay, वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. सो 3 इंटू -1/√3. ओके, सो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है. ओके, एंड √3 का स्क्वायर मीन्स √3 इंटू √3 एंड √3 इंटू √3 का वैल्यू आपका 3 होता है. एंड माइनस का स्क्वायर तो ऑब्वियसली प्लस ही होता है. माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस. ओके, क्लियर. एंड -1, सो 3 कैंसिल. तो यहाँ वैल्यू बचा 1 -1, सो दैट इज 0. ओके, सो इट मीन्स दैट x इक्वल टू -1/√3 is a zero of this polynomial, that is 3x square minus 1. Clear? So similarly I will find out p of 2/√3. Okay, I will replace x by 2/√3. 2/√3. Okay, -1. Okay, let's find out. 3 into 2 square is 4 and √3 into √3 is 3. -1, so 3 cancel. So value is 4 minus 1, that is equal to 3. Okay, so यहाँ पे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल को देखिए क्या आ गया, 3 आ गया. सो इट इंडिकेट्स व्हाट, दैट x इक्वल टू 2/√3 इज नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल p of x, that is 3x square minus 1. So I will write the conclusion part. So x equal to
minus 1 by root 3 is a 0 of the polynomial p of x, okay, comma x equal to 2 by root 3 is not a 0, okay, is not a 0 of the polynomial p of x, okay, अंडरस्टूड, ओके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 3, ओके। इस पोर्शन को आप लोग नोट कर लीजिए, आई एम डन विद दिस पोर्शन, ओके। Find the zero of the polynomials p of x, again p of x and at last g of x। तो तीन पॉलिनॉमियल्स यहाँ पे गिवन है हमें, एंड उन तीनों पॉलिनॉमियल्स का हमें क्या फाइंड आउट करना है, जीरोस, ओके। सो फाइंड आउट करते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5, ओके। तो अभी किसी भी पॉलिनॉमियल का आपको जीरो फाइंड आउट करना है, इट मीन्स जीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल। अगेन मैं डिस्कस करता हूं आप लोगों से, व्हाट इज द जीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच the value of the polynomial, or you can say the value of x for which the polynomial becomes zero is known as the zero of a polynomial, okay। then simply मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये जो polynomial है ना, इससे मैं जीरो के साथ इक्वेट कर दूंगा, ओके। आई विल सिंपली इक्वेट दिस पॉलिनॉमियल विद जीरो, x minus 5 is equal to 0, and this implies what is the value of x, the value of x equal to 5, and this x equal to 5 is what, it is the zero of a polynomial p of x। एक बार चेक भी कर लेते हैं दैट क्या ये x equal to 5 जो वैल्यू हम लोग का निकल के आया है, क्या वो जीरो है, ओके। लेट्स चेक दिस। सो आई विल फाइंड आउट p of 5, so I will replace x by 5, so 5 minus 5 what, 0, yes। पॉलिनॉमियल का वैल्यू जीरो हो गया, इट मीन्स x equal to 5 is the zero of the polynomial p of x। so what I will write, that x equal to 5 is the zero of the polynomial p of x, okay, understood। now second part, again px polynomial is given and the value is 3x minus 21, then what I will do, again I have to find out the zero, it means I will equate this polynomial with 0, so that is 3x minus 21 is equal to 0, so this implies 3x equal to 21, so this implies x equal to 21 by 3, so this implies x equal to 7, okay, understood। so what is x equal to 7, it is the zero of the polynomial p of x, so I will write that x equal to 7 is a zero of the polynomial p of x, okay, understood। next question की तरफ बढ़ते हैं, that is the third part, g of x equal to what, 3 minus 6x, again I will equate this polynomial with 0, so 3 minus 6x is equal to 0, so this implies 3 is equal to 6x, इस माइनस 6 मैं राइट साइड में लेके चला गया, ओके, देन दिस x इक्वल टू व्हाट, 3 by 6, so that is equal to 1 by 2, so what is 1 by 2, x equal to 1 by 2 is a zero of the polynomial g of x, okay। so in the similar manner हम लोग ने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन थर्ड, इस क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट को भी, ओके, क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, if x equal to 2 is the root of the polynomial f of x is equal to 2x square minus 3x plus 7a, so we have to find out the value of a। देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला चीज गिवन पोर्शन में लिखना है, the polynomial is given that is f of x is equal to 2x square minus 3x plus 7a, okay, this is the polynomial that is given over here, and what is the next part that is given, if x equal to 2 is a root of this polynomial, it means x equal to 2 is a zero of the polynomial। मैंने बताया था रूट एंड जीरोस आर द सेम थिंग, ओके। क्या गिवन है, x equal to 2 is a zero of the polynomial f of x, okay। now यहाँ पे एक पॉइंट का समझिए, मैंने क्या बताया था दैट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है,
दैट इस x के वैल्यू को अगर मैं इस पॉलिनोमियल में पुट करूंगा देन इस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगा। ओके, ये चीज मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ। सो यहाँ पे मैं वही करता हूँ। देखिए, मैं इस पॉलिनोमियल को x इक्वल टू 2 से रिप्लेस करूंगा, मीन्स मैं f ऑफ 2 फाइंड आउट करूंगा। ओके, सो 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 7a। ना यहाँ पे देखिए इस पोर्शन को, दिस इज व्हाट, दिस इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। इसे मैं सॉल्व कर दूंगा तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकल सकता है हम लोगों का बहुत ही इजीली, एंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल विल बी 0 बिकॉज मैंने यहाँ x के जगह पे किस वैल्यू को रिप्लेस किया है, x इक्वल टू 2, एंड दिस x इक्वल टू 2 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इट मींस x के जगह पे मैं 2 को जब पुट करूंगा देन इस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है वो 0 आ जाएगा। तो वही मैंने इसे 0 से इक्वेट कर दिया है। ओके, सो 2 इंटू 2 स्क्वायर दैट इज 8 माइनस 6 प्लस 7a इज इक्वल टू 0। ओके, 8 माइनस 6 इज 2 प्लस 7a इज इक्वल टू 0। सो 7a इज इक्वल टू माइनस 2, सो दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 7। ओके, अंडरस्टूड, वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए हम लोगों ने a का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। नाउ इन द सिमिलर मैनर वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 5 ऑल्सो। सेम टू सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे x का वैल्यू चेंज किया हुआ है, पॉलिनोमियल को चेंज किया, एंड द सेम थिंग इट हैज बीन आस्क्ड, ओके, दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ओके, देन पॉलिनोमियल को हम लोग लिख लेते हैं p ऑफ x, इट इज व्हाट 8x क्यूब माइनस ax स्क्वायर, ओके, माइनस x प्लस 2। So what is given that x equal to minus 1 by 2 is a 0. X equal to minus 1 by 2 is a 0 of the polynomial p of x. So what I will find? I will find p of minus 1 by 2 means I will replace x by minus 1 by 2. Minus 1 by 2 to the power 3 minus a into minus 1 by 2 का power 2 and माइनस एंड x की जगह पे हमें माइनस 1 बाई 2 पुट करना है। ओके, एंड प्लस 2, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड द वैल्यू विल बी इक्विवेलेंट टू 0। तो आई विल राइटिंग हियर इज इक्वल टू 0। ओके, सॉल्व करते हैं इस पोर्शन को। देखिए, माइनस 1 बाई 2 टू द पावर 3, इट मीन्स इसका वैल्यू कितना होगा, माइनस 1 बाई 8। सो 8 इंटू माइनस 1 बाई 8, ओके, माइनस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर दैट इज प्लस 1 बाई 4। तो यह आएगा a इंटू प्लस 1 बाई 4 दैट इज माइनस, यहां माइनस a है ना, ओके, माइनस a बाई 4, क्लियर। नाउ माइनस माइनस प्लस दैट इज प्लस 1 बाई 2 एंड प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 8 कैंसल। ओके, सो आई विल टेक द एलसीएम ओवर हियर। एलसीएम इज व्हाट, यहां पे आपका डिनोमिनेटर देखिए 1 है, यहां 4 है, यहां 2 है, यहां पे भी 1 है। सो द एलसीएम विल बी इक्वल टू 4। ओके, सो यहां पे आएगा आपका माइनस 4 माइनस a प्लस 2 एंड 8 इज इक्वल टू 0। ओके, 4 इंटू 0 इज 0, ये वैल्यू तो 0 हो गया। अभी न्यूमरेटर को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 8 प्लस 2 इज 10 एंड 10 माइनस 4 इज व्हाट, 10 माइनस 4 इज 6। ओके, सो 6 माइनस a इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू व्हाट, a इज इक्वल टू 6। ओके, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने a का वैल्यू बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर लिया। ओके, सो दैट वाज द सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 5। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, if x equal to 0 and x equal to minus 1 are the roots of the polynomial f of x. okay, so सबसे पहली चीज हम लोग पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं, that is f of x 2x to the power 3 minus 3x square plus ax plus b. okay, what is given, if x equal to 0 and x equal to minus 1 are the roots of the polynomial, it means x equal to 0 and x equal to minus 1 are the zeros of the polynomial f of x. So I will write x equal to 0 comma x equal to minus 1 are the zeros, okay, are the zeros of the polynomial f of x. And what has been asked in the question, find the values of a and b. okay, तो क्वेश्चन 4 and 5 में सिर्फ एक वेरिएबल का वैल्यू पूछा था, दैट इज a, बट यहां पे हमें a and b दोनों का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्लियर? So as x equal to 0 is a root,
of the, यहाँ पे देखिए x equal to 0 is the 0 of the polynomial f of x. Okay, then what I will do, I will find out f of 0, means I will replace x with 0. So 0 to the power 3 minus 3 into 0 to the power 2 plus a into 0 plus b, and this is what, this is the value of the polynomial, and इसका जो वैल्यू होगा वो 0 के इक्वल होगा. ओके, सो ये वैल्यू देखिए आपका 0 हो गया, ये वैल्यू भी 0, ये वैल्यू भी 0 प्लस b इज इक्वल टू 0. सो दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे देखिए b का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, b इज इक्वल टू 0. ओके, फाइंड आउट करते हैं a का वैल्यू. सो x इक्वल टू 0 के लिए हम लोग ने सॉल्व कर लिया ना, x इक्वल टू -1. इट मीन्स हम लोग फाइंड आउट करेंगे f ऑफ -1, मीन्स आई विल रिप्लेस x विथ -1. -1 टू द पावर 3 -3 इंटू -1 टू द पावर 2 प्लस a इंटू -1 प्लस b, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल. ओके, एंड इसका जो वैल्यू होता है वो 0 के इक्वल होता है. यहाँ पे हम लोगों ने वही मेथड यूज किया था, इक्विवेलेंट टू 0. ओके, इसको सॉल्व करते देखिए, आएगा आपका -2, ये आपका आएगा -3, a इंटू -1 इज -a एंड प्लस, देखिए b का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट किया था 0, तो b की जगह पे हम 0 पुट कर देते हैं. ये आएगा आपका -5 minus a is equal to 0. So this implies value of a is what? It is -5. Okay, so we have found out. So values are, what are the values? A equal to -5 and b is equal to 0. Okay, so this is the answer of your question number 6. Okay, so that's all for today's class. अगले क्लास में मिलते हैं with a new topic, that is the remainder theorem. Okay.